to know what human-computer interaction is, right? Let us now move on and talk about a very important aspect of human-computer interaction called learnability, right? Learnability is, as you would know, learnability is about mm, making interfaces that are easier for new users to learn and for casual users to remember, राइट? वो यूजर्स जो कि नए नए किसी सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे हो उनके लिए आसान हो, यानी जो सिस्टम का लर्निंग कर्व है वो कम हो, उसमें टाइम सीखने में कम लगे, और जो कंटिन्यूसली सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं उनको याद भी रहे कि वो सिस्टम क्या काम करता है, ठीक है? बट ऑब्वियसली इन ऑर्डर फॉर someone, in order for us to make systems learnable, we need to know how human mind works, we need to know what is cognitive science and how the memory system works, right? तो ऑब्वियसली अगर हमें ये पता होगा कि ह्यूमन मेमोरी किस तरह से काम करती है, तो वी वुड बी बेटर एबल टू लुक एट these graphical user interfaces evolution from a learnability point of view. Learnability as in the ability to learn, the ability of that interface to be learned, one, and the ability of individuals to learn an interface so that they can use it, they can continuously remember it. Clear? Right? So we will talk about how users learn about an interface, uh, as to how they form a mental model of its parts. When you see a system, you first form a mental model. You have a mental map of that system in your head, and obviously how it behaves and the behavior that it exhibits, right? And then we will talk about some design principles that we can apply if learnability is an important criteria of the interface that we are designing. Obviously, learnability is one of the very important criteria of any design that we are trying to make. Now, look, for example, this interface. What about this interface? Hmm? ये तो बस एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, बस सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर वार्निंग मैसेज भी हो सकता है, वार्निंग मैसेज भी हो सकता है। नहीं, देखो, ये तो एक मैसेज दे रहा है ना, डायलॉग बॉक्सेस जो है, या इसको मॉडल डायलॉग बॉक्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है? ये कह रहा है कि द स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, टेक्स्ट सेट टू नो प्रूफिंग वाज स्किप्ड, टू फाइंड नो प्रूफिंग टेक्स्ट क्लिक एडिट रिप्लेस क्लिक मोर क्लिक फॉर्मेट क्लिक लैंग्वेज एंड चूज नो प्रूफिंग. Now if you want to go to this particular, let's say, no proofing option, you will have to first click what? एडिट रिप्लेस. No, you will have to first click OK on this dialog box, and as soon as you would click OK, this dialog box would disappear, right? This dialog box would disappear, and then you would no more remember, you will not be able to recall the instructions that are there unless and until you write it down, and obviously that is not very easy on the user to write down that interface. You write down that set of instructions that they need to follow in order to choose no proofing or whatever it is, right? So when you are designing for learnability, you have to be aware of how people actually learn. You cannot assume that if an interface tells the user something, user will immediately learn and remember it. Now the user will have to go through the entire text. Now what happens when you go through a dialog box like this? Do you go through the entire text? No, you just press OK. So again, this dialog box is an example of how do designers, they over rely on users' memory. Now, if I am a designer and I'm giving and I'm conveying this information through the dialog box to the user, I am relying on the user's memory to be able to remember all this information, all this instruction, right? And it's a modal dialog box. So the user cannot start following its instructions until and unless they click OK. OK as in the button OK. And as soon as the user presses OK, the instructions vanishes from the screen, and the user
obviously now struggles to remember that information. So remember, just because you have said it does not mean that they know it. राइट जस्ट आपने कहा कि हमने तो बता दिया था, हमने तो यूजर को बता दिया था ये करना है, वो वही बताया किस तरह से था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, so we need to make sure that we learn how users memory, how users recall, how users learn. So again that brings us to the memory part of it. ठीक है, जैसे जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं ना, जब आप लो लेवल प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब आप कोई भी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, तो it helps to understand the properties of computer system you are programming for. तो आप जिस सिस्टम के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उस सिस्टम को अगर आप जानते हैं, उस सिस्टम को समझते हैं, तो आपको आसानी होती है प्रोग्रामिंग करने में. ठीक है, उसका प्रोसेसर स्पीड, उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसके प्रोसेसर की स्पीड कैसी है, उसका मेमोरी साइज कैसा है, हार्ड ड्राइव कैसी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसके लिए आप डेवलप कर रहे हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है, ये सारी चीजें, मेमोरी कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको आसानी प्रोवाइड करती है ना. अगर आपको ये सारी चीजें पता होती हैं, तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू नीड टू प्रोग्राम. तो हम अब किसके लिए बना रहे हैं इंटरफेसेस, हम इंडिविजुअल्स के लिए बना रहे हैं, हम ह्यूमंस के लिए बना रहे हैं. तो अगेन कुछ प्रॉपर्टीज अगर हम ह्यूमंस की समझ लेंगे, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू डिजाइन इंटरफेसेस दैट वुड वर्क फॉर दोज इंडिविजुअल्स. ठीक है, और ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा एरिया है, एक बहुत बड़ा, यानी इंसान को समझना पूरा सब्जेक्ट, साइकोलॉजी तो सिर्फ एक चीज है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंसान के हवाले से समझना जरूरी होती हैं. लेकिन ऑब्वियसली हम इस कोर्स में जितना हमारे लिए इस वक्त जरूरी है फॉर टू टू गिव इट अ स्टार्ट, हम उतना ही समझेंगे. ठीक है, रेलेवेंट पार्ट हमारे लिए क्या है, मेमोरी, क्योंकि लर्नेबिलिटी का ताल्लुक मेमोरी से है. कोई चीज किसी इंसान को याद रहती है, किसी इंडिविजुअल को याद रहती है. ठीक है, अच्छा, जो कन्वेंशनल मॉडल है ह्यूमन मेमोरी का, वो ये कहते हैं कि जी इट हैज टू पार्ट्स. कौन कौन से पार्ट आपको लिखा हुआ नजर भी आ रहा है. ठीक है, एक वर्किंग मेमोरी है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी. अगर कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में इसको समझने की कोशिश करें आप, तो समझ लीजिए कि वर्किंग मेमोरी को आप जो है वो कैशे मेमोरी या कैश मेमोरी समझ लें, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो आपकी स्टोरेज हो गई. ठीक है, अच्छा, समझने के लिए कह रहा हूं, बट दीज कंपोनेंट्स बिहेव वेरी डिफरेंटली फ्रॉम कंप्यूटर मेमोरी. एंड ऑब्वियसली लर्निंग, which is the process of putting information and procedures into the long term memory, it is not simply a storage process. वो सिर्फ स्टोरेज प्रोसेस नहीं है कि आपने प्रोसेस सीखा और स्टोरेज में डाल दिया, जैसे आप कोई इंफॉर्मेशन डंप कर देते हैं कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में. ठीक है, वर्किंग मेमोरी जो है वो आपकी कॉन्शियस थिंकिंग वाला पार्ट है, जहां पे आप कॉन्शियसली थिंक करते हैं, आप कॉन्शियसली डिसीजन ले रहे होते हैं. समझ में आ रही है बात? यस सर. अच्छा, तो अगेन कहते हैं कि जी द कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी इज रफली अराउंड 7 प्लस माइनस 2 थिंग्स, जो कि चंक्स कहलाते हैं. ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है स्मॉल 7 प्लस माइनस 2 चंक्स. ठीक है, वर्किंग मेमोरी जो है वो कहते हैं कि जी इट इज रफली 7 प्लस माइनस 2, यानी आप एक वक्त में जो कैपेसिटी है वर्किंग मेमोरी की, दैट इज अराउंड ईदर 9 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 2, 7 प्लस 2 इज 9, 7 माइनस 2 इज 5, यानी यू कैन ऑपरेट बिटवीन 5 टू 9, 5 टू 9 थिंग्स. अब 5 टू 9 थिंग्स का क्या मतलब है? 5 टू 9 थिंग्स का मतलब, यानी आपने देखा होगा अक्सर क्या कहते हैं उनको, मेन्यू बार्स होते हैं, उसमें ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, मतलब 25 ऑप्शंस हैं. अब 25 ऑप्शंस आपको याद रखना मुश्किल हो जाता है ना, कि कौन सा ऑप्शन किस जगह पे. तो ये कहते हैं कि जी दिस इज हाउ, क्योंकि कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी जो है वो 7 प्लस माइनस 2 चंक्स. तो अगर आप 7 या 9 या 5 ऑप्शंस रखेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर द यूजर टू लर्न दोज ऑप्शंस, एंड यूजर विल बी एबल टू रिकॉल दोज ऑप्शंस इजीली. ठीक है, अच्छा, मगर अब आप कहें कि यार ये तो बड़ी छोटी सी बात है, वर्किंग मेमोरी तो हमारी इतनी कम नहीं होनी चाहिए.
मतलब वर्किंग मेमोरी इतनी कम तो नहीं है, इतनी सारी चीजें होती हैं जो कि हमें याद रहती हैं, हम सोच रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली वर्किंग मेमोरी का साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है बाय प्रैक्टिस। आप देखते होंगे वो लोग जो कि एक ही सिस्टम बार बार इस्तेमाल करते हैं, उनके उनके सबकॉन्शियस माइंड में सारी चीजें होती हैं, वो आसानी से बार दफा ऐसा होता है दे कैन नॉट इवन स्पेल इट आउट, वो लिख भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, लेकिन वो कर सकते हैं वो काम। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली उनका जो बॉडी मैकेनिज्म है वो सेट हुआ होता है कीबोर्ड पे। वो ये नहीं बता सकते कि अब मैं ये की प्रेस कर रहा हूँ, मैं ये की प्रेस कर रहा हूँ, मैं ये की प्रेस कर रहा हूँ, बट दे आर टाइपिंग सो फास्ट that they do not even realize that they are typing so fast. So working memory जो है वो the size of it can be increased by practice. और obviously अगर यूजर अभी हम चंक्स की बात करेंगे, अगर यूजर जो है वो कुछ टेक्निक्स अप्लाई करे टू कन्वर्ट आर्बिट्ररी डेटा इनटू मोर मेमोरेबल चंक्स, तो और ज्यादा उसकी मेमोरी काम हो सकती है। ठीक है, तो और यूजर आमतौर पे ये करता भी है, चंक्स में इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर लेता है ताकि वो आसानी से याद कर सके। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो चंक क्या है? चंक जो है ना इज अ यूनिट ऑफ मेमोरी और परसेप्शन। यूनिट ऑफ मेमोरी यानी मेमोरी को आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं। तो हमने अभी बात की कि इट इज 7 प्लस माइनस 2 चंक्स दैट द ह्यूमन वर्किंग मेमोरी इज एबल टू होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट। तो चंक जो है वो एक यूनिट ऑफ मेमोरी और परसेप्शन है, डिपेंड्स ऑन प्रेजेंटेशन ऑन व्हाट यू ऑलरेडी नो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने जो एक ये हार्ड में कुछ बेसिकली अल्फाबेट्स हैं, अब इनकी जगह कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, ये दिया हुआ है। हम आमतौर पे फोन नंबर भी इसी तरह याद कर लेते हैं ना कि वो फोन नंबर अगर किसी का जैसे 0300 है तो हमारे जो देसी लोग हैं वो तो याद कर लेते हैं 0350 52 51 पता नहीं क्या क्या क्या। तो वो क्या करते हैं, वो भी बेसिकली चंक कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को। चंक क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इट बिकम्स इजियर फॉर individuals to remember and recall। दो अलग अलग चीजें हैं, देखिए याद रखिएगा, remember and recall। you might remember something but you might not be able to recall it। आपको कोई चीज याद है मगर अब आपको वो याद नहीं आ रही। याद नहीं आ रही से मुराद ये, याद तो है, इट इज देयर समवेयर इन योर माइंड, बट व्हेन द टाइम कम्स यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट। ठीक है, यू माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल इट। अब आप कहते हैं यार याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है, बाकी याद नहीं आ रहा। तो यू माइट रिमेंबर इट बट यू माइट नॉट बी एबल टू रिकॉल, राइट? तो व्हेन यू डिवाइड दैट इंफॉर्मेशन इनटू meaningful chunks that are relatable, that you already remember, that you already can recall, then it becomes much easier because you have related that information to something which you already had in your head, that helps you recall it at the right time as well। हम सब यही करते रहे होंगे ना, आपने भी यही किया होगा शायद इंटर में, बड़े बड़े जवाब याद करने होंगे तो क्या करते थे, हेडिंग्स याद कर लेते थे। अब हेडिंग्स में जो वर्ड बन रहे होते थे, अगर सॉरी अल्फाबेट्स जो हेडिंग के शुरू के आते थे उनसे कोई सेंटेंस बना लिया, अब वो सेंटेंस ऐसा था कि वो हमें याद ही रहता था। तो वो आपने सेंटेंस लिखा, उसके बाद एक एक अल्फाबेट निकाला और उस अल्फाबेट का जो वर्ड था, कीवर्ड, वो लिखते चले गए और आपने पूरा इतना बड़ा लंबा 15 सफ़ों का जवाब जो है वो याद भी कर लिया, लिख भी दिया, सब कुछ कर लिया। और इसी तरह से वो मैथमेटिक्स में साइन कॉस जो है वो उसके भी कुछ मामला थे, वो करली ब्राउन हेयर क्या था पता नहीं, कुछ इसी तरह की चीजें थी। तो अगेन व्हाट यू डू इज यू रिमेंबर in you remember and you connect it with whatever is there already in your head to be able to recall it at the right time। so the easier would be, आपने इसको चंक कर लिया MWB CRA LOA BI MBFI, ठीक है, इस तरह से। लेकिन द मोस्ट इजीएस्ट वुड बी कि आपने इसको MWB को BMW, क्योंकि अब आपको पता है BMW आसानी से याद, BMW को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। RCA AOL IBM FBI, अब ये चीजें आपको BMW RCA AOL IBM FBI इसको याद नहीं करना आपको, you would just visualize it and you would be able to remember it and you would be able to recall it when required।
समझ आ रही? यस सर। अच्छा, अब चंकिंग जो है ना, वो उसकी एक बड़ी मजेदार चीज बताऊं। वो आजकल क्या क्वींस गैम्बिट, चेस, यस सर। वो वो बहुत ज्यादा मामला चल रहे हैं उसके, बहुत लोग देख रहे हैं। तो जो चेस प्लेयर्स है ना, यानी एक स्टडी हुई चेस प्लेयर्स की, ठीक है, जो नए खेलने वाले चेस प्लेयर्स थे और जो मास्टर्स थे, चेस मास्टर्स, दे वर आस्क्ड टू स्टडी चेस बोर्ड्स कॉन्फ़िगरेशन एंड रिक्रिएट देम फ्रॉम मेमोरी। यानी चेस क्वींस गैम्बिट अगर आपने देखी है तो यू वुड नो कि जी वो चेस एक बोर्ड था, उस बोर्ड को रिक्रिएट किया, और रिक्रिएट कैसे करते हैं? फ्रॉम मेमोरी। ठीक है, नाउ द नोविसेस कुड ओनली रिमेंबर द पोजीशंस ऑफ अ फ्यू पीसेस, masters on the other hand could remember the entire boards, but only when the pieces were arranged in legal configurations। ठीक है, जब pieces legally सही जगहों पे रखे थे तो masters they were able to remember the entire boards, but when the pieces were arranged randomly the masters were no better than novices। क्यों? क्योंकि masters के जहनों में भी लीगल अरेंजमेंट्स के बहुत सारे पैटर्न्स मौजूद होते थे और वो रिलेट कर लिया करते थे। So when the pieces were arranged randomly, the masters were no better than the novices, than the new players. Okay? The ability of the masters that was derived from their ability to chunk the board। समझ रहे? जिस तरह से अभी हमने ये BMW, AOL, IBM, FBI, RC इसकी बात की कि चंक कर सके उस इंफॉर्मेशन में जो कि ऑलरेडी है देन। Recognizing patterns from the past experience of playing and studying games, right? सो रिकग्निशन वर्सेस रिकॉल, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिकग्निशन वर्सेस रिकॉल। रिकग्निशन क्या? रिकग्निशन रिमेंबरिंग विद द हेल्प ऑफ अ विजिबल क्यू, यानी कोई चीज आपके सामने आए एंड यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट। ठीक है, अब देखो रिकग्निशन में और रिकॉल में क्या फर्क है। रिकग्निशन का मतलब है मेरे सामने एक चीज आई, आई लुक्ड एट इट और मैं उसको देखते ही पहचान गया। रिकॉल का क्या मतलब है कि मुझे अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ा और मुझे अपने दिमाग को कंघालना पड़ा, टटोलना पड़ा और वहां से वो इंफॉर्मेशन लेके आया। मेरे सामने 4 नंबर लिखे हुए, मैं उन 4 नंबर्स में से देख के ये बता सकता हूं कि सपोज मेरे किसी दोस्त का नंबर ये है, I might not be able to recall that number, लेकिन मैं देख के बता सकता हूँ हाँ कि ये नंबर है। ठीक है, तो अब आपके ख्याल में रिकग्निशन ज्यादा बेहतर हुआ या रिकॉल? रिकॉग्निशन। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ ना कि बेहतर हुआ या रिकग्निशन बेहतर हुआ या रिकॉल बेहतर हुआ, तो मैं ये कहता हूँ ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट लर्नेबिलिटी हियर। तो रिकग्निशन एबिलिटी टू लर्न ज्यादा बेहतर कर सकती है या रिकॉल एबिलिटी टू लर्न ज्यादा बेहतर कर सकती है? ऑब्वियसली रिकग्निशन। आपने सही कहा कि भाई मुझे सामने कोई चीज नजर आ रही है तो मुझे ज्यादा आसानी है ना उसको याद करने में, बजाय इसके कि मुझे कमांड लिखनी पड़े। आप लोगों ने नेटवर्किंग भी पढ़ी है, आप लोगों को एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनानी भी आती होंगी, राउटर पे आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब की होंगी। तो वो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे होती हैं? कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे आपको कमांड्स लिखनी पड़ती हैं या कोई मेन्यू होता है या कोई इंटरफेस होता है जिसमें आप कुछ आइकॉन्स को क्लिक करते हैं और तमाम चीजें खुद ही हो जाती हैं? कमांड्स लिखनी पड़ती है ना, मन्नान ने टेक्स्ट में लिखा है कमांड्स लिखनी पड़ती हैं। तो कमांड्स लिखना ज्यादा आसान है या आइकॉन्स पे क्लिक करना ज्यादा आसान है? कमांड्स का मतलब क्या हुआ? रिकॉल। आइकॉन पे क्लिक करने का क्या मतलब हुआ? रिकग्निशन। तो रिकग्निशन is much easier and because of this menus are much learnable than command languages। यानी लैंग्वेज में आपको पूरा
कमांड लिखनी पड़ती है, आपको खुद ही याद करनी पड़ती है ना कमांड। आप लिनक्स में शेल प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, आपको कमांड खुद ही लिखनी पड़ती है, आप याद करते हैं यार क्या लिखनी है क्या लिखनी है क्या लिखनी है। पहले डॉस प्रॉम्प्ट होता था, कंसोल बेस्ड इंटरफेसेस, यू हैड टू लर्न द कमांड्स बाय योरसेल्फ, बाय योर हार्ट। आज अब आप मेन्यू क्लिक करते हैं, बटन क्लिक करते हैं, यू हैव एवरीथिंग अवेलेबल। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो भी हमें ये बता चुके हैं कि ह्यूमन मेमोरी सिस्टम जो है वो इट इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबली गुड एट रिकग्निशन, अनबिलीवेबली गुड। रिकॉल में नहीं, रिकग्निशन में इट इज अनबिलीवेबली गुड, क्योंकि द एबिलिटी ऑफ आवर माइंड टू रिकग्नाइज पैटर्न्स is again immense। ठीक है, एक स्टडी की थी साइकोलॉजिस्ट ने, एक स्टडी की थी और उन्होंने कहा कि लोगों को ये कहा कि जी यू नीड टू लुक एट 540 वर्ड्स फॉर अ ब्रीफ टाइम, यानी 540 वर्ड्स को उनसे कहा कि आप देखें, और उनका फिर एक टेस्ट लिया जिसमें उनको ये बताना था कि कौन सा पेयर ऑफ वर्ड जो है वो उन्होंने उस 540 वर्ड लिस्ट में देखा था। तो रिजल्ट क्या आया, मतलब उनको 540 लफ्ज दिखाए और उसके थोड़ी देर बाद उनसे कहा कि भाई अब आप बताइए, ये पूरी लिस्ट है 4000 लफ्जों की, इसमें बताएं आपने जो 540 देखे थे उसमें कौन कौन से लफ्ज शामिल थे। 88% एक्यूरेसी थी ऑन एवरेज, 88% एक्यूरेसी, यानी पीपल वर इजीली एबल टू रिकॉग्नाइज। अच्छा, अगर यही काम उनसे कहा जाता ना कि जी ये लफ्ज देखो 540, और 10 मिनट बाद उनसे कहा जाता अब लिख दो, जितने तुम लोगों को याद आते हैं उतने लिख दो वापस, तो रिजल्ट्स क्या होते, बहुत डिफरेंट होते। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ। स्टूडेंट जो है वो आपके ख्याल में, मुझे कोई 3 लोग आंसर कीजिएगा, आपके ख्याल में स्टूडेंट हाउ well they are likely to perform in a fill in the blank kind of exam or an MCQ kind of an exam, यानी MCQ में वो बेहतर परफॉर्म करेंगे या fill in the blank में वो बेहतर परफॉर्म करेंगे। एमसीक्यूज में सर, क्यों? रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, उसमें Because रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। recognition is better than recall। In a multiple choice question the hints are already there। वली सही कह रहे हैं आप, the hints are already there, not just hints but answers are there, you have to recognize the answers only। ठीक है, you only have to recognize the answers, you do not need to recall the answers, you only need to recognize the answers, and that is what makes it easier। clear है? So again, recognition is knowledge in the world, recognition is what is visible to you, recall is remembering with no help, that is knowledge in your head। अब हम नॉलेज इन योर हेड को कॉग्निटिव लोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लोड, यानी द लोड ऑन योर कॉग्निशन। तो recognition is much easier and the menus are more learnable than command language। क्लियर है? तो इसका क्या मतलब हुआ, रिकग्निशन और रिकॉल का डिजाइन से क्या ताल्लुक हुआ, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से क्या ताल्लुक हुआ? सर आइकन्स का, और हम जो जो भी चीजें सिस्टम में यूज कर रहे हैं उनको। We need to make sure that again क्योंकि हम लर्नेबिलिटी की बात कर रहे हैं, we want to make our systems learnable। ठीक है, और अब हमें ये पता है कि जी recognition is much better and much learnable, menus are more learnable than command language, so we would make menus, we would make more icons, we would use more icons so that user is able to learn the system and be able to remember the system easily। ठीक है,
तो अगेन देयर आर दीज गल्स ऑफ एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन लर्नेबिलिटी ठीक है in we can think about learnability in terms of a cognitive model for how people use the computer system ठीक है अच्छा और ये मॉडल जो है पहली दफा आर्टिकुलेट किसने किया था डॉन नॉर्मन ने डॉन नॉर्मन की हम शायद पहले बात कर चुके हैं हमने की है क्लास में बात डॉन नॉर्मन की नो सर अच्छा अभी कोई वीडियो भी नहीं हमने देखा क्लास में नहीं सर आपने बोला था मैं दिखाऊंगा ऑनलाइन में हाँ मैंने तुमसे कहा था ना मुझे याद दिलाना दो चीजें हमजा यस सर दूसरी क्या थी सर रिसर्च पेपर दिखाना था आपने और वीडियो दिखानी थी रिसर्च पेपर कौन सा आपने बोला था मैं तुम लोग को कोई रिसर्च बताऊंगा उस कौन सा रिसर्च वो जो फोन वाला था सर मैंने तो सिर्फ रिसर्च लिखा शायद याद थी चलो ठीक है खैर अभी वो वीडियो टुवर्ड्स द एंड देखते हैं क्लास के पहले ये जरा सा मुकम्मल करें तो डॉन नॉर्मन जो है वो एक डिजाइन गुरु है बेसिकली ही इज अ प्रोफेसर ऑफ कॉग्निटिव साइंस ही इज अ प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी ही इज अ प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस तो वो उसकी एक पहले किताब थी द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स 1989-90 में उसने लिखी फिर बाद में उसने उसका दूसरा एडिशन जब लिखा तो उसका नाम चेंज हुआ डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स बना इट इज अ हाईली रिकमेंडेड बुक प्लीज गो थ्रू दैट बुक अगर कहीं आपको मिल जाए तो ठीक है इट इज अगेन अ वेरी वेरी गुड तो पहला वो ये कहता है कि जी यूजर जो है ना जब भी कोई सिस्टम को इस्तेमाल करने का इंटेंशन शो करता है तो उसके जहन में कोई गोल होता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर वो आप फोटोशॉप अगर आप लोगों ने यूज किया है तो फोटोशॉप यूज करना है ना तो और एक फोटो को ब्राइट करना है फॉर एग्जाम्पल ठीक है तो इस काम को करने के लिए भी एक प्लान ऑफ एक्शन और फिर उसको एग्जीक्यूट करना रिक्वायर्ड होता है ठीक है अगर एक नया यूजर है तो उसके लिए प्लान स्टार्ट होगा कि जी कमांड कैसे ढूंढे मेन्यू कहाँ से आए और वो कोई ऐसी चीज जिसपे ब्राइटनेस लिखा हो वो उसको क्लिक करके चेक करेगा कि इससे क्या होता है ऐसा ही है ना जब हम नया एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं तो हम यही करते हैं कि जी नई हमें अगर लेट से ब्राइटनेस चेक करनी है तो हम ब्राइटनेस या उससे इर्द गिर्द का कोई करीबी लफ्ज जो है वो ढूंढ रहे होते हैं कहीं पे लिखा हुआ हमें नजर आ जाए या कोई ऐसा आइकॉन नजर आ जाए जिसका हम अपनी नॉलेज के हिसाब से ब्राइटनेस के साथ लिंक बना सकें ठीक है दैट मींस इफ अ सिस्टम हैज बीन डिजाइंड इन अ वे दैट द यूजर जो है वो अपनी मर्जी से अपने आसानी से ब्राइटनेस का सिंबल किसी भी तरह से ढूंढ सकता है तो आसानी होगी उसको ठीक है तो फिर यूजर स्टार्ट्स एग्जीक्यूटिंग एक्शन एंड द सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद सम आउटपुट ठीक है आप क्लिक करते हैं तो सिस्टम आउटपुट देता है ना आपको किसी ना किसी तरह का आपने कोई एक मेन्यू सिलेक्ट किया आपने एक मेन्यू क्लिक किया तो मेन्यू जो बटन है वो कोई रिस्पॉन्स देता है ना आपको कि जी ये बटन क्लिक हो गया है ठीक है और फिर यूजर परसीव करता है इंटरप्रेट करता है और फिर इवेल्युएट करता है आउटपुट को अगेंस्ट दी ओरिजिनल गोल जो वो करना चाह रहा होता है कि क्या ये आउटपुट मुझे अपने गोल से करीब लेके जा रहा है यानी उसने ब्राइटनेस के बटन पे क्लिक किया वो क्लिक हो गया क्लिक होने से मतलब ये कि वो एक्टिव नजर आ गया उसका कोई भी फीडबैक हो सकता है उसमें हम बाद में बात कर लेंगे ठीक है तो अब वो समझता है कि हाँ यार ये ऑन हो गया बटन ब्राइटनेस का अब मैं कुछ आगे बढ़ता हूँ यानी वो जो ऑब्जेक्टिव था उसके करीब लेके जा रहा है ना आपको वो काम ठीक है तो अब अगर वो फीडबैक उसको लगता है कि नहीं ये मुझे अपने गोल के करीब नहीं लेके जा रहा तो फिर वो क्या करता है रीप्लान करता है वो कहता है यार चलो अब मैं दूसरा बटन दबा के देखता हूँ ठीक है या मैं गोल ही चेंज करके देखता हूँ ठीक है हो सकता है इस सॉफ्टवेयर में ब्राइट हो ही नहीं सकता हो इमेज तो कुछ और करके देख लेते हैं समझिएगा तो अगेन यूजर गोल है इंटेंशन प्लानिंग एग्जीक्यूशन है फिर वो सिस्टम तक जाता है और फिर सिस्टम में जो फीडबैक देता है उसको उसको परसीव करता है इंटरप्रेट करता है इवेल्युएट करता है और अगर वो यूजर को उसके गोल से करीब लेके जा रहा है तो वो कैरी ऑन करता है और अगर नहीं लेके जा रहा तो वो फिर से अपना इंटेंट बनाता है फिर से प्लान करता है और फिर से एग्जीक्यूट करता है तो ये जो यूजर का इंटेंशन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन है दीज आर कॉल्ड गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और जो यूजर की परसेप्शन है अबाउट द फीडबैक दैट द सिस्टम प्रोवाइड्स इट जो इंटरप्रिटेशन है जो इवैल्यूएशन है दैट इज कॉल्ड द गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन
क्लियर है? अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, अभी हम लर्नेबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन लर्नेबिलिटी इज नॉट द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ऑफ यूजेबिलिटी दैट कैन बी अंडरस्टूड विद दिस मॉडल। ठीक है, ये जो मॉडल है ना, एग्जीक्यूशन इन गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन इन वैल्यूएशन, इससे सिर्फ हम लर्नेबिलिटी नहीं समझते हैं, इससे हम विजिबिलिटी और इससे हम फीडबैक भी समझते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो इट इज अ मेजर ऑफ होल साइकिल, कि ये कितनी देर में होता है परफॉर्म। आप एक क्लिक करते हैं, फीडबैक कितनी देर में मिलता है आपको वापस। ठीक है, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है, आपने क्लिक किया उसके बाद आप इंतजार कर रहे हैं बैठे में कि कोई एक्शन परफॉर्म होगा। दैट इज द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, द स्पीड ऑफ परसेप्शन। ठीक है, तो वीडियो जो है वो सेक्शन बी में दिखा दी थी कोई। अच्छा, अब है हमारे पास इंटरैक्शन स्टाइल। इंटरैक्शन स्टाइल जो है ना, वो हमारे पास क्यों होते हैं हमारे पास इंटरैक्शन? ऑब्वियसली जो लर्नेबिलिटी के मेजर गोल्स हैं कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस हमारे पास आए, और ऑब्वियसली दे आर अ वेरी गुड स्टेप फॉरवर्ड इन लर्नेबिलिटी। ठीक है, जो एवोल्यूशन ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस है वो भी लर्नेबिलिटी का ही एक मेजर गोल था, क्योंकि मेजर गोल उनका ये था कि यूजर की लर्नेबिलिटी को कैसे एनहांस किया जाए। So there are three major kinds of user interface styles for desktop computing. ठीक है, और डेस्कटॉप कंप्यूटिंग हम कहते हैं कंप्यूटर विद स्क्रीन, कीबोर्ड एंड माउस that have been used. We इनको देखते हैं कि करके look at them one by one. सबसे पहले हम देखते हैं कमांड लैंग्वेज को। कमांड लैंग्वेज की हमने पहले बात की है कि यूजर टाइप इन कमांड इन एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज की तरह क्योंकि obviously this is although close to natural language, this is also artificial language. So ls-l static.java, this is a unix shell command, list की कमांड है बेसिकली ये। ठीक है, सर्च इंजन क्वेरी कोई सी भी हो सकती है। ये एक यूआरएल है, ये भी आपको याद रखना पड़ता था पहले। अब क्या हुआ है कि अब ब्राउजर्स ने भी ये रियलाइज करते हुए कि यूआरएल याद रखना लोगों के लिए मुश्किल होता है, उन्हें रिकॉल करना पड़ता है। उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जांपल क्रोम में क्या हुआ है, पहले नहीं था ये। भाई थंबनेल्स बने हुए आ जाते हैं ना आपके सामने फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस के, या आप कोई टाइप करना शुरू करते हैं तो मशीन लर्निंग हैज बीन इंट्रोड्यूस, तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बीन इंट्रोड्यूस। ये सारी उसी की ब्रांचेस हैं। दे आर ऑल, ये जो प्रेडिक्टिव टेक्स्ट है ना, जब आप लिख रहे होते हैं, आप सर्च इंजन में कोई क्वेरी लिख रहे होते हैं और आप जो है वो गूगल पे कोई सर्च लिख रहे होते हैं, तो होता क्या है, आप टाइप करना शुरू करते हैं और आपके सामने एक पूरी लिस्ट आ जाती है, प्रेडिक्टिव टेक्स्ट आ जाता है, जिसमें से आप फिर सेलेक्ट कर लेते हैं, आपको पूरी क्वेरी लिखनी भी नहीं पड़ती। तो आप बजाय इसके कि रिकॉल करें किसी पर्टिकुलर यूआरएल को, आपके सामने आ जाता है वो यूआरएल। तो अगेन इट इज मोर रिकग्निशन एंड लेस रिकॉल। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन अब जो है ना, अब वो वाला नहीं है कि सिर्फ मेन्यूज और आइकॉन्स की बात हो रही है। इट इज आल्सो ब्रांचिंग आउट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट इज आल्सो ब्रांचिंग आउट फ्रॉम मशीन लर्निंग, इट इज आल्सो ब्रांचिंग आउट फ्रॉम ऑल दीज एरियाज, डेटा साइंस एंड डेटा माइनिंग। ये सारा कुछ डेटा ही है ना। ब्राउजर हिस्ट्री का इज़हार कह रहे हैं, नॉट जस्ट ब्राउजर हिस्ट्री बट अ लॉट ऑफ ब्राउजर्स हिस्ट्री, यानी दुनिया के कितने ब्राउजर, आपके रीजन में क्या सर्च की जा रही है, वही टॉप पे आएगी आपके सामने। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ साइंस, अ लॉट ऑफ डेटा माइनिंग, एंड देन इट इज, तो अगेन कमांड लैंग्वेज इज वन ऑफ द इंटरेक्शन स्टाइल्स। फिर मेन्यूज एंड फॉर्म्स। अच्छा, बहुत तरह के मेन्यूज हैं। यूजर को आप प्रॉम्प्ट करते हैं कि भाई किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर ले मेन्यूज और फॉर्म्स में से। ठीक है, तो मेन्यू फॉर्म जो है वो एक आपके सामने लिस्ट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर देता है, बहुत तरह के होते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, हर तरह का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो इस वक्त हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसमें किसी ना किसी तरह का मेन्यू या फॉर्म होता है, मेन्यू फॉर्म इंटरेक्शन होता है। ठीक है, एक मेन्यू बार की तरह से होगा, ट्री ऑफ मेन्यू होगा, डायलॉग बॉक्सेस होगा, किसी भी तरह से होता है। तो यूजर को उसमें ज्यादा आसानी होती है कमांड लैंग्वेज की बनस्बत, क्योंकि इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखें, ये जो एक वर्ड में आप देखते हैं, अब ये सारा काम टेक्स्ट पे भी हो सकता है, यानी सॉरी कमांड लैंग्वेज में भी होता होगा एक जमाने में, जब एक जमाने में वर्ड स्टार था, विच वाज अ कंसोल बेस्ड टेक्स्ट एडिटर।
which was a console based text editor. मुझे याद है 1990 में, मतलब आप लोगों में से तो कोई भी पैदा नहीं हुआ होगा मेरा ख्याल है उस वक्त, 1990 में आई टुक अ कोर्स ऑन वर्ड स्टार, ठीक है, और मुझे अभी तक याद है इट वाज अ, आप तो सोच भी नहीं सकते, इट वाज अ कंसोल बेस्ड वर्ड टेक्स्ट एडिटर। यानी हमारे पास अब जैसे वर्ड है ना, वर्ड तो जीयूआई बेस्ड है, इट वाज अ कंसोल बेस्ड, यानी हर कमांड आपको लिखनी पड़ती थी। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, यू हैव टू राइट अ कमांड, यू हैव टू लर्न दैट कमांड, यू हैव टू रिकॉल दैट कमांड। कब की बात है ये? बता दो भाई, 1990 पैदा हो गए थे तुम ताजदार? अच्छा चलो अबे भाई चल रहा है, बता देना। क्या हो गया मुस्तफा? और फिर तीसरा जो टाइप ऑफ इंटरेक्शन की हमने बात की, दैट इज डायरेक्ट, बात नहीं की मतलब हमने कहा था कि हम बात करते हैं डायरेक्ट, दैट इज डायरेक्ट मैनिपुलेशन। डायरेक्ट मैनिपुलेशन क्या, ठीक है, डायरेक्ट मैनिपुलेशन इट इज अ प्री एमिनेंट इंटरफेस स्टाइल फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस, जिसमें मेन्यूज आपके सामने अवेलेबल होते हैं, यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप देम जस्ट लाइक यू वुड डू इन रियल वर्ल्ड। आप एक चीज एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, आप एक फाइल एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख देते हैं बाय द यूज ऑफ योर हैंड, यू कैन ग्रैब योर फाइल एंड यू कैन पुट इट समवेयर एल्स, दैट्स व्हाट यू डू, ठीक है, एंड दैट इज व्हाट डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज इंस्पायर्ड बाय। यूजर इंटरैक्ट्स विद विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज कंटिन्यूअस विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं गायब हो जाती है, आप एक फाइल को एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जा रहे हैं, वो आपको नजर आ रही है कंटिन्यूसली। अच्छा, हालांकि उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ऐसा नहीं हो रहा होता कि वो मेमोरी पे ऐसे एक जगह से दूसरी जगह खसीटती हुई जा रही हो, ठीक है, लेकिन ये कि जस्ट इन ऑर्डर फॉर द यूजर टू फील दैट समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, दैट इज व्हाट विजुअल रिप्रेजेंटेशन इज ऑल अबाउट। फिजिकल एक्शंस और लेबल्ड बटन्स आर देयर, ठीक है, रैपिड इंक्रीमेंटल रिवर्सिबल इमीडिएटली विजिबल इफेक्ट, स्क्रॉल बार पे आप क्लिक करते हैं आपको पेज आगे स्क्रॉल होता हुआ नजर आता है, क्लियर है? तो ये वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन है जो कि हम आज इस्तेमाल करते हैं अपने डेस्कटॉप सिस्टम्स को इस्तेमाल करने के लिए, क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब ये आप लोगों ने देखा होगा, दिस इज द स्ट्रीट व्यू फीचर और गूगल मैप्स का है एक स्ट्रीट व्यू फीचर। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मैनिपुलेशन इन इंटरफेस। ये इंटरफेस हमें अलाउ करता है टू ईदर क्लिक और क्लिक ड्रैग टू चेंज द पर्सपेक्टिव एंड लोकेशन ऑफ द गूगल मैप्स। आप इसको क्लिक ड्रैग करें, पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, लोकेशन चेंज कर लें। आप खुद भी आज गूगल मैप्स अगर इस्तेमाल करते होंगे तो आप उसका पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ फिंगर के ऑप्शन से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैप जो है वो आपको कंटिन्यूस विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है ऑफ जियोग्राफिकल डेटा दैट रिस्पॉन्ड्स रैपिडली विजुअली एंड इंक्रीमेंटली टू फिजिकल फिंगर मूवमेंट्स अगर आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, और टू फिजिकल माउस मूवमेंट्स अगर आप डेस्कटॉप सिस्टम या लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी किसी ने सजेस्ट किया था, ये ऐसे ही डायरेक्ट पैदा नहीं हो गया कि जिस फॉर्म में आज हमारे पास है गूगल मैप्स या स्ट्रीट व्यू, वो अचानक डायरेक्ट इसी फॉर्म में आया था। इट इज ज्योग्राफिकल डेटा, रिमेंबर, ऑल ऑफ इट इज ज्योग्राफिकल डेटा, एंड दैट the Google Street View or the Google Maps that we look at, as we look at it today, is graphical representation of that geographical data that is available to us today. Clear है? तो अगर हम कंपेयर करें इंटरैक्शन स्टाइल्स को, ये तीन इंटरैक्शन स्टाइल्स की हमने बात की ना, सबसे पहला इंटरैक्शन स्टाइल था हमारे पास कमांड लैंग्वेज, दूसरा था मेन्यूज एंड फॉर्म्स, तीसरा था डायरेक्ट मैनिपुलेशन। अब हम इन तीनों इंटरैक्शन स्टाइल्स को अगर कंपेयर करें तो ये वो बेसिस होंगी जिनकी बेसिस पे हम उनको कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला फॉर एग्जांपल नॉलेज इन द हेड वर्सेस नॉलेज इन द वर्ल्ड। तो नॉलेज इन द हेड किसमें सबसे ज्यादा चाहिए? कमांड लैंग्वेज में। नॉलेज इन द वर्ल्ड किसमें सबसे ज्यादा चाहिए? ज्यादा होती है डायरेक्ट मैनिपुलेशन में।
एरर मैसेजेस किसमें ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चाहिए? कमांड लैंग्वेज में, मेन्यू फॉर्म्स में। इसमें एरर मैसेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक चीज एंटर नहीं की तो यू वुड, आपने एक कमांड पूरी नहीं लिखी तो आपके पास मैसेज आएगा ना, ये बैड कमांड, या यू हैव नॉट फॉर एग्जांपल यूज्ड द राइट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मैनिपुलेशन में एरर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एरर जो है ना वो बिल्ट इन होता है। एरर मैसेज कब होगा भाई? आप स्क्रॉल बार अगर आप ज्यादा बढ़ा के ले जाएं तो एरर मैसेज थोड़ी आएगा। वो तो आपको पेज जो दिखा रहा होगा उस स्क्रॉल बार की वजह से वो कहेगा कि जी अब ये 50वें पे नहीं, आप 60वें पेज पे आ गए। ठीक है, तो जो विजुअल कंस्ट्रेंट्स है ना स्क्रॉल बार के, वही ऑब्वियसली आपको बता रहे होते हैं कि सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है। फिर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है? कमांड लैंग्वेज की, मेन्यूज एंड फॉर्म्स इंटरैक्शन स्टाइल की, या डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरैक्शन स्टाइल की? एफिशिएंसी जो है ना, एक तो बात याद रखिए कि एक्सपर्ट्स कैन बी वेरी एफिशिएंट विद कमांड लैंग्वेज, क्योंकि एक्सपर्ट्स जो है ना दे डू नॉट लाइक टू वर्क विद मेन्यूज एंड आइकॉन्स, दे लाइक टू वर्क विद देयर हैंड्स ऑन द कीबोर्ड। आपने देखा होगा ना अक्सर ग्राफिकल जो ग्राफिक्स पे काम करते हैं अक्सर लोग, जो पाकिस्तान चौक पे या ऐसी जगहों पे बैठे होते हैं, वो तो फोटोशॉप भी अपने कीबोर्ड से ही चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो ये भी अच्छा नहीं लगता कि वो उठ के माउस तक जाएं, कट 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 ऐसे जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं कीबोर्ड से, कि बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स। सो एक्सपर्ट्स कैन बी वेरी एफिशिएंट विद कमांड लैंग्वेज सिंस they obviously do not need to wait for the visual system outputs. ठीक है, फिर एफिशिएंसी की हमने बात कर ली। यूजर टाइप या यूजर एक्सपीरियंस, तो यूजर टाइप जो है कमांड लैंग्वेज इज जनरली बेटर फॉर एक्सपर्ट यूजर्स। जो मेन्यूज एंड फॉर्म्स हैं और डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, दे आर जनरली बेटर फॉर इनफ्रीक्वेंट यूजर्स या नोविस यूजर्स जो होते हैं, उनके लिए मेन्यूज एंड फॉर्म्स और डायरेक्ट मैनिपुलेशन ज्यादा बेहतर है। सिंक्रोनी, सिंक्रोनी जो है वो यानी कि जैसे आप कमांड टाइप कर रहे हैं या दे रहे हैं कमांड, उसी हिसाब से सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो कमांड लैंग्वेज आर सिंक्रोनस। सिंक्रोनस क्यों? क्योंकि पहले यूजर कंप्लीट कमांड टाइप करता है और फिर सिस्टम करता है कोई काम। ठीक है, मेन्यू सिस्टम्स एंड फॉर्म्स भी ऐसे ही हैं। यू फिल आउट अ वेब फॉर्म एंड देन यू सबमिट इट। आप एक वेब फॉर्म फिल करते हैं फिर आप उसको सबमिट करते हैं। direct manipulation on the other hand is asynchronous. The user can point the mouse anywhere and do anything at that time. DM interfaces are necessarily event driven. एक इवेंट जब होगा पूरा फिर होगा काम। आप एक माउस से, माउस के कर्सर से एक फाइल को ग्रैब कर रहे हैं, आप ग्रैब करके उसको घुमाते रहे घुमाते रहे घुमाते रहे, कुछ भी नहीं होगा, नो एक्शन विल बी परफॉर्म। ठीक है, आपने कॉपी करना है ना वो किसी फोल्डर में, जब तक आप उस फोल्डर पे जाके उसको ड्रॉप नहीं करेंगे उस वक्त तक कोई कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, तो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एसिंक्रोनस। प्रोग्रामिंग डिफिकल्टी किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग डिफिकल्टी जो है वो डायरेक्ट मैनिपुलेशन में ज्यादा है, क्योंकि कमांड लाइन इंटरफेसेस आर रिलेटिवली इजियर टू इंप्लीमेंट। क्योंकि आपको यूजर को कुछ नहीं देना ना, सिर्फ कमांड लाइन में आपको इंटरेक्शन वो इंस्ट्रक्शंस लिख के, तो इट इज फाइन। अब क्या है, कहां जाओ वहां खाली। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट मैनिपुलेशन इंटरफेसेस बनाने पड़ेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, डिफिकल्टी उसमें ज्यादा है। Accessibility, command line and menu forms interactions are more textual so that they are easier for vision impaired users to read with the screen readers. Direct manipulation interfaces are much harder for these users. ठीक है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट ज्यादा होता है, यानी मेन्यू एंड फॉर्म्स में और कमांड लाइन में, तो इट इज इजियर फॉर पीपल विद विजन इम्पेयरमेंट टू गो थ्रू that interface using screen reader. मेरी स्क्रीन आ रही थी या तेरे पास? मैं इंटरफेसेस में आ रही होगी फराज, मेरा नाम क्लियर है ये? तो मेरा ख्याल है कि इसको हम यहीं पे रोकते हैं अभी। मैंने आप लोगों से जो हमने पिछले सेशन में बात की थी, दैट वाज रिगार्डिंग
डॉन नॉर्मन, एक तो ये कि इंट्रोडक्शन भी डॉन नॉर्मन का, दूसरा ये कि हमने नॉर्मन डोर्स की बात की थी कि डोर्स हमने ये देख रहे थे ना कि हम के हमारे इर्द गिर्द के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका भी तो इंटरफेस होता है कुछ ना कुछ। ये बोतल के ढकने का इंटरफेस है, ठीक है, ये बोतल का अपना एक इंटरफेस है, सो दैट इट इज इजियर टू होल्ड ऑन टू, ठीक है। इसी तरह से हर ग्लास का, किसी पेन का, हर चीज का इंटरफेस होता है ना। तो जिस चीज का जो डेली ऑब्जेक्ट्स हैं उनका जो किताब डॉन नॉर्मन की है बेसिकली साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे थिंग्स या डिजाइन ऑफ एवरीडे थिंग्स, उनका इंटरफेस भी इफेक्ट जब करता है हमें, हमारे यूसेज को, हमारी यूजेबिलिटी को, हमारे इंटरेक्शन को। ऑब्वियसली जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है, अगर हम वही इंटरफेस डिजाइन टेक्निक्स या वही इंटरफेस डिजाइन पैराडाइम्स ड्राइव करें रियल वर्ल्ड डिजाइन से, तो हमें बहुत ज्यादा आसानी होती है डिजाइन करने में ऐसे इंटरफेसेस which are easier to use, which are easier to remember, which are efficient, which have visibility, higher visibility of the options that the users wish to use. ठीक है, मैं आपको वो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ, प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो और फिर उस पर जरा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा जी, आवाज आ रही है आप लोगों को? नो सर, अभी है। अच्छा, तो ये वीडियो देखें जरा, फिर इस पर बात करते हैं। The office that I hate so much. There's this door on the 10th floor of the Vox Media office that I hate so much. God damn it. You ever get this door wrong? Pretty regularly. Have you seen people misuse it? All the time, every day. Constantly. I hate this door. Me too, Kelsey. But here's the thing. As soon as you start looking for confusing doors, they are everywhere. It's push. Why? I feel like Roman Mars would know about this. This is 99% Invisible, and those doors you hate are called Norman doors. What's a Norman door? Don Norman wrote the essential book about design. He is the Norman of the Norman door. All right, and where is this guy? You must go to San Diego. Okay. Hi, Joe. Hey, I'm Don Norman. Gee, you know, it's hard to describe what I am. Well, he's been a professor of psychology, professor of cognitive science, professor of computer science, a vice president of advanced technology at Apple. But for our purposes, I was spending a year in England, and I got so frustrated with my inability to use the light switches and the water taps and the doors even, that I wrote this book. If I continually get the door wrong, is it my fault? No. In fact, if you continually get it wrong, it's a good, and if other people continually get it wrong, good sign that it's a really bad door. A Norman door is one where the design tells you to do the opposite of what you're actually supposed to do, or gives the wrong signal and needs a sign to correct it. Why does it need an instruction manual? That is, why do you have to have a sign that says push or pull? Why not make it obvious? It can be obvious if it's designed right. There are a couple of really simple, basic principles of design, and one of them I'll call discoverability. When I look at something, I should be able to discover what operations I can do. The principle applies to a whole lot more than doors. And it's amazing with many of our computer systems today. You look at it, there's no way of knowing what's possible. Should I tap it once or twice or even triple tap? So discoverability, when it's not there, well, you don't know how to use something. Another is feedback. And so many times there's no feedback. You have no idea what happened or why it happened. And these principles form the basis of how designers and engineers work today, commonly known as user or human-centered design. I decided at one point the word user was a bit degrading. Why not call people people? And it's amazingly simple and amazingly seldom practiced. We call it iterative because it sort of goes around in a circle. We go out and we observe what is happening today. We observe people doing the task. And from that, we say, oh, we have some ideas. Here's what we should perhaps propose to do. Then you prototype your solution and test it.
quite often these are wrong at first. But each time we go around the circle, we do a better job of making the device until the point we're actually making something that really works. And this process has spread all over the world. And it turns out it's improving lives. From better everyday things like the ones that Don wrote about, To using the same process to solve huge problems in public health in developing countries. water, Sanitation, farming. lots more. So what'd be a better human-centered door? An ideal door is one that as I walk up to it and walk through it, I'm not even aware that I had opened the door and shut it. So if you had a door which had a flat plate, what could you do? Nothing. The only thing you can do is push. So see, you wouldn't need a sign. A flat plate, you push. This kind of push bar with the piece sticking out on one side works well too, so you can see what side you're supposed to push on. The vertical bars could go either way. A simple little hand thing, though, sort of indicates pull. But we still have terrible, terrible doors in the world. So many of them. There are lots of things in life that are fairly standardized, and therefore, whether I buy this house or not is not a function of whether it has good doors in it. And so, except for safety reasons, doors tend not to be improved. But the tyranny of bad doors must end. I think that it's a really shitty design. The fact that they put pull handle when it's a push. And that should be a flat panel right here. And not a pull handle. That's how I feel about this store. It's very misleading. I agree. You're right, Becky. You're goddamn right. And if we all thought like you, well, we might just design a better world together. It won't open because it's a security door. What the f*** are you two doing? Hey, so as you can see, since I started making this video, they've since changed the door a little bit. I guess it's a step in the right direction. Thank you so much. जी क्या समझ में आया? समझ में आया नहीं समझ में आया वीडियो देखा ये डोर some doors are very confusing ठीक है design should be obvious design does matter the design of regular objects is sometimes inconvenient ठीक है तो एक असाइनमेंट मैं आप लोगों के लिए क्लासरूम पे रख दूंगा वो होगा डिस्कवरेबिलिटी और लर्नेबिलिटी के हवाले से जरा प्लीज इन द मीन टाइम गो थ्रू सर्च फॉर डॉन नॉर्मन ऑन ईदर यूट्यूब और बहुत सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे प्लीज गो थ्रू सम ऑफ द लेक्चर्स you will find amazing information on human computer interaction and usability right so I think that is it for now we will continue this inshallah in the next session